Dear students, in today's class we will learn about electric field at an axial point due to an electric dipole. Okay. Yesterday we have discussed about what is dipole and what is its axial position. Okay. Right now I am again go through this that it because things should be clear to all of you. Suppose uh, this is the dipole minus q and plus q. We have discussed that if two charges of equal magnitude but opposite in nature are placed at a very small distance, then we may say that it is a dipole. So this is point A, this is point B, and this is the midpoint, and the distance between them is 2a, and the charge is minus q and plus q. Uh, if any point is placed in the line joining of the dipole, then we may say it is the axial point. Okay, minus q plus q. Suppose this is the point P where we have to find, this is the axial position along the line joining of the dipole. This is the axial position. Okay, we measure all the distances midpoint, all the distances from the midpoint of the dipole. Okay, so distance of P point from the dipole is x. Okay, clear? And we have to find the electric field at an axial point due to an dipole. So at first we will find electric field due to point A on point P, then we will find electric field due to point B at point P. Okay, uh, for finding an electric field on point P, we have to first place a small test charge at point P, that is plus q naught. Okay, so what will be the suppose we have placed a plus q naught charge at point P. What will be the effect on the plus q naught charge due to minus q charge? Minus q will try to attract this charge. Okay, so we can write EPA. EPA means electric field at point P due to point A. Okay, clear? The same thing is applied for plus q charge. We have to find the electric field due to point B or plus q charge on plus q naught. Plus q naught means at test charge. So both are positive in nature. So plus q charge will push to the test charge plus q naught away from itself. Then its direction is this. It is EPB. It is EPB. Okay. I think thing must be clear to all of you. Now we have to find the value of EPA and EPB. So think we have to find the value of EPA. At first we will talk about EPA. So for EPA we know the formula of EPA. EPA is the formula is EPA equal to K Q upon R square into R cap. This is the formula of electric field
Okay, so now we will use the same formula for finding the value of EPA, electric field at point P due to A or plus minus Q charge. So it is here EPA is equal to, so EPA is equal to K into Q. Okay, we will not write negative or positive since the electric field is a vector quantity, so we will not write any sign of the charge. Okay, because we are already given the direction, we are showing the direction, that's why we will not put any kind of plus or minus here. So EPA is equal to KQ upon x plus A whole square, because uh, we have this distance is because this distance is x, because this distance is x and this distance is A. Okay, because it is the midpoint of AB, so the total distance is x plus A. This is the same, this is the A. Okay, the total distance is x plus A. This is the point A, this is the point P, so the total distance is x plus A. Okay, I think you may got the idea. The total distance here EPA is equal to x plus K into Q. K is the permittivity of the permittivity, Q is the charge at point A, and distance between point P and point A is x plus A. So the the net equation is EPA is equal to KQ upon x plus A whole square along PA. ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही हम क्या करेंगे, EPV फाइंड करेंगे। तो EPV के लिए क्या होगा, सेम चीज़ होगी। EPV एक्चुअली बी पॉइंट जो है आपका इधर से जो बी पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो बी पॉइंट में ये देखो आप, हमको डिस्टेंस यहाँ से फाइंड करनी होती है, हमको जो डिस्टेंस फाइंड करनी है वो यहाँ से यहाँ तक की फाइंड करनी है, ठीक। ये जो डिस्टेंस आपको गिवन है, ये x ये गिवन है, a आपका ये है, और डिस्टेंस हमको ये वाली निकालनी है, ठीक है। हमको फाइंड जो करनी है वो ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, x माइनस a, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होगी, x माइनस a होगी। तो यहाँ से EPV आप क्या लिखोगे, KQ अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर along P, along PN, ठीक है, along PN मीन्स इसकी डायरेक्शन अपोजिट, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, कि यहाँ पर रिपल्शन होगा क्योंकि प्लस क्यू इधर है, बी पॉइंट पे भी प्लस क्यू है, और जो आप टेस्ट चार्ज लेके आए वो भी आपका प्लस क्यू नॉट ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो आपने टेस्ट चार्ज रखा है वो क्या है, प्लस क्यू नॉट है। मैं आपको टेस्ट चार्ज के बारे में बता चुका हूँ, इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है। ये केवल एक्सपीरियंस करेगा फोर्सेस का। तो दोनों आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रही है, ओके। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी वो इस साइड पे जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड करोगे ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी,
ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा माइनस कम करेंगे। तो ज़्यादा कौन सी है, बड़ी कौन सी है, उसके लिए देखो इसका फॉर्मूले में ही से ही समझ में आ रहा है। ई पी ए की वैल्यू के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर है, ई पी वी की वैल्यू के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर है। तो डिनोमिनेटर जिसमें ग्रेटर है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो एक्स प्लस ए का डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है कंपेयर टू एक्स माइनस ए। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ई पी वी इज़ ग्रेटर दैन ई पी ए हो जाएगा। अब यहाँ ई पी फाइंड करने के लिए ई नेट आप निकालोगे, ई पी इक्वल टू ई पी वी माइनस ई पी ए अलॉन्ग पी एन। ठीक है, ई पी वी की डायरेक्शन में ही आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो ये के क्यू कॉमन आ जाएगा सब में, 1/x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, इधर एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, इधर आपका ये एलसीएम आ गया। फार्मूला जो आपका होता है बेसिकली, फिर से देख लो, अरे आपका ये फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब अगर इसका होल स्क्वायर कर दो तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हुई है यहाँ पे। तो एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। तो देखो इसमें जो आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax इधर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax आएगा, क्योंकि माइनस साइन लग जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ले देंगे क्या बचेगा, 4ax बचेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तक क्लियर है ना सबको, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए हमारी समझ में। अब जो है, अब आप इसमें कल आपने एक फार्मूला पढ़ा है, P इक्वल टू, ये मोमेंट का P इक्वल टू होता है 2, कल वैसे 2L मैंने बताया था, 2QL मैंने बोला था। तो डिस्टेंस क्या थी, 2L थी, और Q क्या था, चार्ज था, या 2QL। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 2A ली गई है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या ली गई है, 2A। यहाँ पे डिस्टेंस ली गई है 2A, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए इंटू क्यू, 2AQ। ये चीज़ क्लियर हो रही है भाई। ये जो मोमेंट होता है ना, ये है 2A, ये है माइनस Q, ये है प्लस Q। तो इनका मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू 2AQ। ठीक है, ये क्लियर हो रही होगी बात। तो अब क्या करोगे, ई एक्सीएल, तो ये आपका 2KQ इंटू 2A इंटू एक्स कर दिया मैंने इसको, तो 2A इंटू क्यू हो जाएगा P। ठीक है, ये हो गया P। तो 2KPX आ गया, और नीचे बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो ई एक्सएल की वैल्यू हो गई 2KPX अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें दो कंडीशन है, केस 1, इफ़ एक्स इज़ वेरी ग्रेटर दैन ए, तो एक्स ए क्या हो जाए, ए निग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ही केवल बचेगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी एक्स टू द पावर 4 बचेगा, और ऊपर एक एक्स है तो उस एक्स से एक्स टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एक्स क्यूब बचेगा। तो इसका फार्मूला ई एक्स सी एल इक्वल टू 2K P अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 2K P अपॉन एक्स क्यूब। तो इसका अगर फार्मूला देखें तो ई प्रोपोर्शनल टू 1/x क्यूब है, और ई प्रोपोर्शनल टू P है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो -Q टू +Q है। ठीक है, क्लियर, थैंक यू।